السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور دوستو، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں، پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم کیٹٹ 2024 کا سوالی پرچہ یہاں پر حل کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں گے اس کے اہم کلیدی جو ہیں یہاں پر کی آنسرز آج ہم یہاں پر جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جہاں تک ہے یہ سوالات جو کلیدی جوابات ہیں، ان کی سوالات ہیں، ان کے جوابات تو آپ کو درست نظر آئیں گے، لیکن ہم جو بورڈ کی جانب سے ارسال کیے جائیں گے، جو بورڈ کی جانب سے دیے جائیں گے جوابات، اسی کو یہاں پر 100% صحیح مانیں گے، مستند مانیں گے۔ لیکن یہ جوابات جو ہیں بہت ہی آپ کو قریب پہنچائیں گے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا سوالی پرچہ کس حد تک یہاں پر حل کیا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے میں نے بتایا پیپر 2 میں لینگویج 1 یہ ہے، یہ سوالی پرچہ۔ تو اب دیکھیے ایک یہاں پر عبارت دی گئی ہے، اس عبارت کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور اس سے منسلک جوابات، یعنی 1 تا 8 تک کے سوال جوابات جو ہیں آپ کو جو متبادل ہیں، ملٹیپل ہے، اس کو دینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے 10 ہجری ہر طرف یہ منادی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ یاد رکھیے 10 ذی الحجہ یہ خبر دفتن پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امڑ آیا، اور ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو، یہ تاریخ یاد رکھیے، ذی القعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر تہمت باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے، یعنی حج کے لیے جو نکلے وہ تاریخ کون سے بھائی؟ یہاں پر 26 ذی القعدہ۔ مدینے سے 6 میل پر ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری۔ یہ ذوالحلیفہ کتنا ہے؟ مدینے سے کتنے میل ہے؟ 6 میل۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری اور دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ یہ قصوہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے، اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا ایک جنگل نظر آتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک فرماتے تو یہی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفتن پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی۔ کس کی؟ لبیک فرماتے اس کی آواز سے۔ اس طرح منزل بہ منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ، یاد رکھیے ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ نظر آیا تو فرمایا، کیا فرمایا؟ اے خدا اس گھر کو عزت اور شرف دے۔ یہ کون فرمانے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ کا طواف فرمایا، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا، صفا کی جو پہاڑی ہے اس پر چڑھ کر فرما رہے ہیں، کیا فرما رہا ہے؟ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جبتوں کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کیا فرما رہے ہیں؟ عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے کی ہدایت فرمائی۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ، مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ یمنی حاجیوں کے ساتھ۔ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے، یمنی حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے جمعرات کو 8ویں ذی الحجہ۔ یہ بھی یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا، یہاں پر مینا میں 8 ذی الحجہ۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو کیا ہے؟ پھر صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر مینا سے روانہ ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام فرما رہے، اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو وہاں سے مینا سے روانہ ہوئے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے، عرفات کا جو میدان ہے وہاں پر دوپہر ڈل گئے تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بےہودہ رسم بے ہدم مراسم کیا ہے؟ مٹا دیے گئے، آج ختم۔ اب دیکھیے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से 6 मील पर पहुंच के यहाँ काम क्या फरमाया? मदीने से 6 मील पर क्या है भाई? यहाँ पर जैसे आपने देखा, मदीने से 6 मील पर क्या है? जुल हलीफा का मकाम है। तो इसका जवाब क्या हो गया यहाँ पर? सही जवाब नंबर 2। मीना में तो यहाँ पर आगे आ रहे हैं, मीना में क्या फरमाया यहाँ पर? क्या है? 8 जिलहज्जा का मीना का मकाम है, तो इसका जवाब होगा जुलहज्जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहज्जा की इस तारीख को मक्का में दाखिल हुए। मक्का में कब दाखिल हुए भाई? यहाँ पर देखिए आप, तारीख क्या है? 5 जिलहज्जा। जिलहज्जा की 5 तारीख, यानी इसका जो जवाब है भाई नंबर 1। ये इस तारीख को क्या है? मक्का में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए रवाना हुए। रवाना जो है ना, जो ऊपर आपने देखा 26 ज़िलक़दा, 10 को तो मुनादी हुई, लेकिन 26 ज़िलक़दा को क्या है? आपने हज के लिए रवानगी इख्तियार की है। साहबियों की वाहिद, साहब तो नहीं, साहिब भी नहीं, ये भी जमा है, ये भी जमा है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? सहाबी। सहाबियों की वाहिद सहाबी, असाब भी जमा ही है, लेकिन इसलिए जो है ये भी जमा है, ये भी जमा है, तो सहाबी क्या है? इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो अब 5वां जवाब देखिए क्या हो सकता है। ये लफ्ज मारता का जिद, जैसे हमने देखा ऊपर इबारत में, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में कहा, क्या? वही है जो जिलाता है और मारता है। यानी ये यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जिलाता, ये तो सुलाता है, सुलाता का उठाता हिलाता का, क्या ये तो, क्या ये नहीं, खिलाता वगैरह ये नहीं हो सकता। तो वही जिलाता है, वही मारता है, यानी जिंदा करने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। तो 5वें का जवाब क्या हो गया? वही जिलाता। 9 जिलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ इस मकाम पर क़याम फरमाया। 9 जिलहज्जा को कहाँ गए भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखिए 8, उसके बाद 8 जिलों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में क़याम फरमाया, और 9 जिलहज्जा को क्या है? मीना से रवाना हुए और अरफात। तो यहाँ पर जो है इसका जवाब 9 जिलहज्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर क़याम फरमाने, अरफात के मकाम पर क़याम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाका पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम, नाका यानी ऊँटनी, तो उनकी ऊँटनी का नाम क्या था भाई? कस्वा। ये इसका जवाब है। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुर्तजा रजी अल्लाह हाजियों के साथ मक्का में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो नहीं आए थे, लेकिन जो वो काफिला था वो यमनी था। आप अली रजी अल्लाह अन्हु क्या है यहाँ पर जिस काफिले के साथ पूछे, यमनी था, तो इसका जवाब क्या है? 1 होगा। अब दरअसल गौर से पढ़ते हुए 9 उत्ता 15 के सवाल और जवाब मुतबादिल लिखे। मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से, दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। ये घर जो है सर ये काफिया है, और से जो है रदीफ है, तो इनको याद रखिए। बरसा भी तो किस दश्त के बेफैज बदन पर, एक उम्र मेरे खेते थे जिस अब्र को तरसे, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बुरे शजर से। किससे? जो इस दरख्त को। खुद अपने से मिलने का याराना था मुझ में, मैं भीड़ में गुम हो गई तन्हाई के शक से, बेनाम मसाफत की मुकद्दर है तो क्या गम, मंजिल का तय्युन कभी होता है सफर से, निकले हैं तो रास्ते में कहीं शाम भी होगी, सूरज भी है मगर आएगा इस राह गुजर से। तो ये गजल है, और जैसे हम देखते हैं गजल का पहला शेर यहाँ पर है ना, मुश्किल है। पहले शेर को क्या कहते हैं भाई? मतला कहते हैं। फर्द, फर्द है ना शेर, लेकिन मतला कहते हैं। बैतुल सबसे अच्छा मक्ता है ना आखिरी शेर, तो इसका जवाब होगा मतला। इस गजल में रदीफ जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है भाई? सर, क्या, तर, शजर, डर, सफर, राह गुजर, ये तो काफिया हैं, लेकिन से काफिया के बाद आ रहा है, तो रदीफ क्या होगी यहाँ पर? इस गजल में रदीफ क्या है भाई? से है। तो ये चौथा, एक उम्र से खेत तरसे हुए थे किस, जब यहाँ पर देखते हैं आप क्या, दस्तार पे, एक उम्र मेरे खेते थे जिस अब्र को तरसे, किसको तरस रहे हैं यहाँ पर? अब्र को तरस रहे हैं। कौन? उसकी उम्र के खेत। शायर मजाजी बात कराए। चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से, है ना, बूढ़ा शजर जो है उससे बड़ा प्यार था। यानी नंबर 1, शायरा के भीड़ में गुम जाने की वजह क्या हुए? भीड़ में तन्हाई के डर से। वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आखिर में जो शेर आया है, क्या यहाँ पर आ रहा है ना, क्या, मैं भीड़ में गुम हो गई तन्हाई के डर से, तो इसका जवाब क्या होगा? तन्हाई। नंबर 2, दस्तार के माने, ये तो क्या हो गए भाई? दस्तार है ना,
पगड़ी जो सर पे बांधी जाती है, तो इसका जवाब 4 है। टोपी तो पहनी जाती है, सदर सदरी जो ये कुछ भी नहीं, जुब्बा तो पहना जाता है जो नीचे होता है, लेकिन दस्तानी माने पगड़ी। मंजिल की जमा, ये तो जो है सीधे सीधे हमारे सामने है मनाजिल, जलजला, नजूल, नाजिल, नाजिल से नजूल, ये नहीं। अब यहाँ पर देखिए 16 से 30 तक के सवाल को जवाब देखिए। अलिफ वाव या को कहा जाता है क्या है भाई? सादा हुरूफ नहीं, मखलूत हुरूफ नहीं, बल्कि उनको हुरूफ इल्लत, वॉवेल्स, जो उर्दू के वॉवेल्स हैं वो 3 है, अलिफ वाव और या है, हुरूफ इल्लत। चौथा जवाब इसका सही है। अबू तालिब, उम्मे हानी, इब्ने मरियम, ये कलमे क्या है भाई? जब ऐसे नाम आते हैं तो वो कुनियत होते हैं। उर्फ छोटा नाम, प्यार से खिताब दिया जाने वाला। अलम खास, अलम है ना खास, जो इस सामने यहाँ पर अनवर है, शेख है, क्या ये जो है अनवर है, मुबीन है, आसिफ है, ये तमाम आलम कहलाते हैं खास को। अब और वो जिस पर जबर जेर पेश में से कोई अलामत हो, जबर क्या भाई? जेर या पेश में से कोई अलामत हो तो क्या होगा यहाँ पर? अगर किसी हर्फ पर कोई अलामत ना हो, अलामत साकिन जज्म की आए तो वो साकिन होगा, तो साकिन तो नहीं है। मुशद्दद तशदीद हो, मौकूफ तो नहीं है, मुतहरिक हरकत करता है, मुतहरिक। अभी वो निस्म जिसमें कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा के अशर हो, तो वो तो जो है किता होगा। रुबाई में 4 होते हैं, गजल में तो उसकी कोई पाबंदी नहीं होती। हम में जो है अशार में यहाँ पर भी जो है अल्लाह ताला की तारीफ में आप बांध सकते हैं, लेकिन किता ही है जिसमें कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 21 अशर हो। वो कलमा जो इसम की जगह लाया जाए वो तो सिफत ने, ये तो उसकी क्या अच्छा है बुरा है गुजाहिर, तो इसमें यानी नाम, फेल यानी काम, तो होगा जमीर जो इसम की जगह, ये वो, मैं, मेरा, तू, तेरा, वह। अब खाक में मिलना, बिस्मिल्लाह करना, ये ना जब आता है ना, ये अलामत मुहावरा है, तो सीधा हमारा जवाब होगा मुहावरा। कहावत में नहीं होता। नंगा नाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ऐसे कहावतें हैं, ना कहावत में नहीं लाया जाता। जुमला जो है, जुमले में तो बात कही जाती है, मुरक्कब यानी अल्फाज को यहाँ पर जोड़ा जाता है, ये तो इसका ये नहीं होगा, तो जवाब क्या होगा सही यहाँ पर? मुहावरा। अब कलमदान, दौलत कदा, खिदमतगार, गार, कदा, दान, ये आखिर में आए हैं। जब आखिर में आते हैं, पहले आए तो साबिक होगा, आखिर में आए तो लफ्ज के वो तो लाइक होगा, बाद में आए तो सीधा सीधा इसका जवाब जो है लाइका है, नंबर 1। कसीर लिसानी या जुल लिसानी माहौल में जबान की अहमियत है। जब जब देखते हैं ना, इसमें जो खास जो है जिस जबान को अहमियत दी जाती है वो इशारों की जबान है, आवाजों की नहीं, अलामतों की नहीं, शक्लों की नहीं। तो सही जवाब है इशारों की जबान। मादरी जबान के तदरीस का पहला मरहला कौन सा है भाई? जब सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला मरहला जो है सुनना होता है, समात। उसके बाद ही बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, सब उसके बाद। क्या? तो इसका जवाब है समात। सानवी मंजिल में स्कूल की उम्र कितनी होती है उमूमन? यहाँ पर जब जब बच्चा सातवीं तालीम पहुंचता है, स्कूल को पहुंचता है, तो उसकी उम्र होती है कितनी भाई? 14, यानी 6 से 14 साल तक वो फ्री तालीम हासिल करता है। 14 यहाँ पर 6 से 14 से 15 तक की जो है, 15 जो है इसकी उम्र सानवी तालीम, स्कूली मंजिल, सानवी मंजिल में स्कूली बच्चों की उम्र होती है कितने? 14 से 15। अब खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुकात का तजिया करते हुए बेहतर तरीका कौन सा है भाई? खेल बराए खेल, ये तो खेलना ही होता है। आमोजिश बराए सिर्फ इसका कोई नहीं होता, खेल बराए लुत्फ तो नहीं होता, खेल बराए आमोजिश, यानी आमोजिश, खेल जो है आमोजिश को सीखने के लिए सबसे बेहतर जरिया माना जाता है। इसको जो है इसका जो जवाब है वो है खेल बराए आमोजिश। इनमें से ये माहौल के अनासिर तरकीबी नहीं है, यानी माहौल में क्या नहीं आता भाई? समाजी माहौल तो चाहिए, दोस्तों का माहौल भी चाहिए, मदरसे का माहौल चाहिए, तो जो नहीं आता वो खानदान, खानदान भी है लेकिन सबसे जो है दूर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नंबर 1। ये इसके सही जवाब नहीं है, नंबर 1, इसको टिक कीजिए आप। और तहजीब और फिक्र के दरमियान राब्ता क्या है भाई? तहजीब और फिक्र के दरमियान क्या है? किताब भी है, खानदान भी है, खेल तो नहीं है, लेकिन सबसे अहम मजबूत जरिया क्या है? जबान है। जबान के जरिए ही तहजीब को और फिक्र को हम उजागर कर सकते हैं। और जबान की 4 बुनियादी महारतें कौन से? इसकी तरतीब क्या है? LSRW, ये सही तरतीब। L यानी क्या है भाई? लर्निंग, लिसनिंग। लिसनिंग कहाँ है? देखिए यहाँ पर चारों में लिसनिंग है, तो चारों हैं। यस
स्पीकिंग, अभी स्पीकिंग में जो है बोलना, बोलना क्या है, यहाँ पर पढ़ना है या लिखना है, यहाँ पर पढ़ना है तो बोलना यहाँ पर आ गया। तीसरा जो है रीडिंग, पढ़ना, आखिरी जो है लिखना, तो सीधा सीधा जवाब जो है यहाँ पर चौथा हो जाएगा। और आखिर में जो है सिर्फ सुनने, बोलने और बातचीत करने की जो सलाहियत की नशनुमा होती है इस सतह पर होती है। तो यहाँ पर जो है इसका जवाब तो उमूमन ये दो होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर कुछ बातें आती हैं कि प्राइमरी सतह पर ज्यादा जो है ये बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है, यहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन प्री प्राइमरी में जो है सुनने का मादा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बोर्ड की जानिब से जो कलीदी जवाब जब आएंगे उसके तहत हम इसका जवाब बस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की ये जो कलीदी जवाब आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट किया होगा, अपना फिर से जो है तज्जिया किया होगा। फिर दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नई चीज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।